हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये टॉपिक होने वाला है अबाउट द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, एमएल एंड ब्लॉकचेन एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग the careers of MBA graduates, and not just careers but the day-to-day activities which we all perform are getting impacted because of these modern day technologies, and how to combat these and what an MBA graduate should do to actually be out there in the market experienced and upskilled in these particular tools and technologies and to not be outdated in the current modern day era. So first of all मैं start करना चाहूँगी because आजकल सारे MBA roles not just business focused रह गए but there is a sudden shift in the curriculum as well of these particular MBA education system from just being business oriented to now being techno functional oriented. So tools and technologies को embed करके एक business को run कैसे किया जाता है ये सिखाया जाता है आजकल MBA curriculums में भी. So let us first understand what is the basic meaning of AI, ML and blockchain before we start with seeing at the impacts of how it is impacting all the different streams like HR, marketing, finance and operations management. So AI is basically artificial intelligence. We feed into the system a certain set of sample database, and based on that sample database, a computer based bot learns through all the algorithms and gets trained to identify of how a particular object can be classified, and not just classification of objects but also biometric and natural language processing. Now what is ML? ML is basically machine learning जिसमें एक एल्गोरिथम को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने का एबिलिटी दिया जाता है. How that is done? It is done through coding, but we are feeding certain amount of questionnaires or set of questions which a particular person can ask the system. Suppose अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन में आप जा रहे हैं, आप एक चैटबॉट को फेस करेंगे जो चैटबॉट आपसे पूछेगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए, एंड बेस्ड ऑन द सेट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो उसमें फीड किए गए हैं और उसको किस तरीके से उस चीज़ों को आंसर करना है वो आपको उस तरीके से आंसर देता जाएगा. दीज आर ऑल सिंप्लीफाइड. अगर उसको आंसर नहीं देते आ रहा है देन इट विल डायरेक्ट टू अ human assistance where you can get guidance from that particular person. It basically classifies, identifies patterns and then makes decisions accordingly. So this is about ML. Now about blockchain. Blockchain क्या करता है? It is basically used for, as I said in my earlier video as well, ये एक बहुत ही tamper proof technology है जिसको easily कोई hack नहीं कर पाता है. So इसको secure transactions में use किया जाता है, and using a distributed ledger technology which is available with all the stakeholders in an organization, and सबके पास में एक अपना अपना account होता है, and those are based on particular codes like OTPs, and it is all very secured, and हमें end to end visibility मिलता है पूरे transactions का right from the start to the end जहाँ पे वो transaction is marked as completed. तो AI, blockchain and ML इस तरीके से सिर्फ आजकल एक buzzword नहीं रह गया है, but it is actually embedded into the day-to-day tasks of big industries, and it is actually leading to disruptions. For MBA graduate, this means a shift from only business specific roles to tech embedded business roles, techno functional roles. तो अब हम understand करेंगे कि in particular tools and technologies का impact क्या हो रहा है हमारे different streams of MBA में, जैसे कि HR, marketing, finance and operations and supply chain management. So to start with HR, किस तरीके से AI, ML, people analytics and automation में यूज हो रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट है अबाउट रेज्यूमे स्क्रीनिंग एंड ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन. रेज्यूमे स्क्रीनिंग कब होता है? जब हमारे जॉब प्रोवाइडर्स एक जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू बताते हैं कि उनको क्या एक्सपेक्टेशन है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या एम्प्लॉय से. सो वो पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन के कीवर्ड्स, जार्गन्स जो होते हैं, एक रेज्यूमे में उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स या जार्गन्स को सर्च किया जाता है. सो नाउ दीज पर्टिकुलर कीवर्ड्स आर फेड इनटू अ सिस्टम. वो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि किसके सीवी में वो जार्गन्स या कीवर्ड्स आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो सॉर्टिंग हो जाता है रेज्यूमेस का राइट इन द फर्स्ट प्लेस यूजिंग AI टेक्नोलॉजी, जो कि अर्लियर एक काफी मैनुअल प्रोसेस हुआ करता था. एंड ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन में भी जैसे ट्रेनिंग्स या आपको कौन से लर्निंग्स करने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन जो मैन्युअली आपको बताई जाती थी, आजकल दीज आर ऑल ऑटोमेटेड थ्रू AI टेक्नोलॉजी. अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन परफॉर्मेंस एंड एट्रिशन. सो ये प्रिडिक्शंस जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ML या मशीन लर्निंग एक टूल है जो एनालिटिक्स करता है अबाउट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा उसको दे दिया जाता है. एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का डेटा उसको दे दिया गया है. सो इन फ्यूचर वो एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे उसको कितना हाइक मिलना चाहिए या क्या परफॉर्मेंस रहा है. इफ इट इज नॉट डूइंग वेल तो एट्रिशन करना है या नहीं करना है. दीज ऑल डिसीजंस एंड एवरीथिंग इज नाउ बीइंग डन थ्रू ML.
और ब्लॉकचेन किस तरीके से यूज होता है? इट इज यूज फॉर वेरीफाइबल एचआर रिकॉर्ड्स। सो एचआर रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमारे पास में, वो अर्लियर कभी कोई चेंज भी कर सकता था, बिकॉज दोज वर ऑल डिजिटल एंड एक्सेल बेस पे कोई भी जाकर उस सिस्टम में जाके चेंजेस कर सकता था। लेकिन राइट नाउ बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन, जैसे मैंने बोला, ब्लॉकचेन ऑफर सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन, सो सिक्योर्ड एंड टैम्पर प्रूफ। तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता एंड ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे अब एकदम सिक्योर्ड होते हैं। तो एज आई सेड अर्लियर, जो सारे प्रोसेसेस अर्लियर मैनुअल होते थे अब वो सारे ऑटोमेट हो गए। सो हमारे पास में एम्पल ऑफ टाइम रह गया है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन दैट नीड्स टू बी मेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज बनाना एंड उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना इज द करंट रोल ऑफ अ MBA ग्रेजुएट इन HR। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग में AI, ML एंड ब्लॉकचेन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सो इट इज अबाउट हाइपर पर्सनलाइजेशन। जैसे हमें यूट्यूब या इंस्टाग्राम वीडियोज या रील्स दिखाए जाते हैं, वो एकदम पर्सनलाइज होते हैं बेस्ड ऑन आवर डेटाबेस इट हैज कलेक्टेड फ्रॉम प्रायर सर्च या आपके वॉच हिस्ट्री में देखकर या आपने जो कीवर्ड्स सर्च किए हैं उसके बेसिस पे आपको एकदम टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स, टारगेटेड प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट हाइपर पर्सनलाइजेशन बीइंग डन इन सेल्स एंड मार्केटिंग यूजिंग AI। सेकेंड इज अबाउट कस्टमर बिहेवियर प्रेडिक्शन विद ML। तो अब एक कस्टमर कौन से पर्टिकुलर ब्रांड पे स्विच कर रहा है एंड मार्केट में कैसा कॉम्पिटिशन है, व्हाट आर द प्राइसेस एंड ये सारा डेटा ML को फीड कर दिया जाता है, जिसके बेसिस वो कस्टमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ हेल्पफुल टूल व्हाइल मेकिंग डिसीजंस अबाउट द बिजनेस। हमको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में कॉम्पिटिटिव रखने के लिए उसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होने चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट ब्लॉकचेन इन डिजिटल एड्स। सो जैसे आजकल हमारा सारा डेटा डिजिटल हो गया है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज कर सकता है सो दैट इट बिकम्स द कॉपीराइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इटसेल्फ एंड वो इन्फॉर्मेशन कोई उसकी बाहर का पर्सन दूसरा इन्फ्रिंज ना कर पाए। उसके लिए ब्लॉकचेन इज बीइंग यूज्ड इन डिजिटल एड्स। तो जैसे हमने देखा कि पहले हम जो डिसीजंस बनाते थे वो एक गट बेस्ड या एक्सपीरियंस पर्सन के बेसिस पे, उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होते थे, बट नाउ वी आर रिलाइंग मोर एंड मोर ऑन AI एंड ML टेक्नोलॉजी टू हैव सम हाइपर पर्सनलाइजेशन and to make it all customized. So अब हमें as an MBA graduate in marketing, we have to derive insights, we have to strategically make some improvements based on this data. Now moving on to the next slide which is on operations and supply chain management में क्या disruptions ला रहा है. So supply chain operations have become more and more smart and transparent. जैसे end to end visibility हमें मिलने लग गई है through blockchain. हम trace कर पा रहे हैं कि ये source of that particular product क्या था and आगे चलकर ये कौन से particular customer को sell हुआ है उसका ट्रेसेबिलिटी हमारे पास में आ चुका है. दिस इज ऑल वेरी सिक्योर डेटा एंड टैपर प्रूफ. सो ये रिलायबिलिटी भी इंक्रीज करता है यूजिंग ब्लॉकचेन टूल. सारे ट्रांजैक्शंस भी हमारे स्मूथ एंड ट्रस्टवर्दी हो गए बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन. एंड सप्लाई चेन में ये फोरकास्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन जैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकता है बिकॉज हम फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स या एल्गोरिथम्स करते हैं जो कि आइडेंटिफाई हो सकता है यूजिंग AI. अगर हमारे हिस्टोरिक डिमांड में कुछ एक ट्रेंड या सीजनैलिटी देखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सा फोरकास्टिंग मेथड यूज करना चाहिए सो दैट हम एक ऑप्टिमाइज्ड फोरकास्ट विद मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव कर सके. तो नाउ ML कैसे यूज हो रहा है. मशीन लर्निंग इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. जैसे कि एक मशीन का ब्रेकडाउन हो रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सो हम उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे. जैसे एक पर्टिकुलर मशीन का स्लो हो गया है आउटपुट या उसका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गया है, सो वी कैन प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कि वो कौन सी मशीन है और वो कब स्टॉप होगी एंड हम उसका मेंटेनेंस कब कर सकते हैं. एंड ब्लॉकचेन जैसे मैंने आपको बता दिया, इट इज यूज्ड फॉर एंड टू एंड विजिबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड मेकिंग द ट्रांजैक्शंस वेरी सिक्योर्ड. अब हमें क्या फॉलो करना चाहिए फॉर एन ऑपरेशंस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर द प्रोफाइल टू बी वेरी मच रेलेवेंट इन करंट टाइम. हमें प्रोएक्टिव डिसीजंस बनाने पड़ेंगे देन रिएक्टिव. मतलब कुछ हो गया है उसके बाद में हम उस पर रिएक्ट करें एंड देन अपने ऑपरेशंस करें, उससे बेटर है हमें उसके ऑपरेशंस को प्रोएक्टिवली पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्रेटेजिकली एलिमिनेट करना है. अगर कुछ पर्टिकुलर मशीन का ब्रेकडाउन हो गया है या क्या हमारे फ्लॉज हो सकते हैं इन फ्यूचर, उसको प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करके उसको हम सिक्योर कर सके, उसको हम कर्ब कर सके. अगर कुछ मिस्टेक्स होने वाली है इन फ्यूचर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी पहले से ही कि वो कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा. एंड वी नीड टू अकॉर्डिंगली प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट फॉर एंड टू एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज ऑन फाइनेंस. अब फाइनेंस में जैसे मैंने बोला ऑटोमेशन की वजह से काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन अब सिक्योर्ड हो गए हैं. हैकर्स जल्दी हैक नहीं कर पाते हैं ट्रांजैक्शन
फिर भी आजकल काफ़ी सारे क्राइम्स भी बढ़ गए, लोगों ने उसमें लूप होल्स निकाल लिए हैं। लेकिन ये ऑटोमेशन वाली टेक्नोलॉजीज जो है AI ML एंड ब्लॉकचेन, ये पूरी तरह से उसको सिक्योर्ड एंड एकदम ट्रस्टवर्दी बना देती है इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। सो यूजिंग ML अब फ्रॉड डिटेक्शन इजीली हो सकता है बिकॉज इट कैन आइडेंटिफाई कि एक फ्रॉडस्टर के क्या पैटर्न्स हैं एंड इट कैन क्लासिफाई अ पर्सन के बेस्ड ऑन द क्रेडिट स्कोर वो उस लोन को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वेल इन एडवांस, एंड उसके बेसिस पे वो डिसीजन दे पाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को लोन देना भी है या नहीं देना है। तो इससे हमारे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आगे जाके। अब ब्लॉकचेन जैसे मैंने बताया एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, तो लेजर वही होता है जो एक स्टेक होल्डर के पास में होता है, तो इसमें वो सारे ट्रांजैक्शन स्टोर करके रख सकता है एंड इट इज ऑल टैम्पर प्रूफ। सो इसलिए ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसके थ्रू बन सकते हैं, हम डील कर सकते हैं विद डिफरेंट कस्टमर्स जो नॉट जस्ट B2C है बट B2B कस्टमर्स के साथ भी हम इजीली डील कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वी आर रेस्ट एश्योर्ड के ये पर्टिकुलर प्रोसेस एकदम ही ट्रस्टवर्दी रहेगा। नाउ अबाउट रोबो एडवाइजर्स एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको अर्लियर एग्जांपल दिया, एक आप बैंकिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास में चैटबॉट्स होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं या जो आपको क्वेश्चंस को जानकर आपको उसको सोल्यूशन देते हैं। इसके बेसिस पे एंड मार्केट में कैसा ट्रेंड देखा जा रहा है उसका एल्गोरिथम लगाकर उस पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कि अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अकॉर्डिंगली द ट्रेडिंग्स कैन ऑल्सो हैपन। फॉर एन MBA ग्रेजुएट इन फाइनेंस इट इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम मैनुअल एनालिसिस टू स्ट्रेटेजिकल इनसाइट। सो आइए जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे फाइनेंस के लिए होंगी BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसमें काफी ज्यादा एक रेवोल्यूशन देखा गया है इनटू फिनटेक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, काफी लोग फाइनेंशियली एकदम सिक्योर्ड ग्रोथ के टर्म्स में काफी प्रोग्रेस कर गए हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। FMCG में इट इज यूज्ड इन डिराइविंग कंज्यूमर इनसाइट एंड मेकिंग सम डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज। हेल्थकेयर इज लेवरेजिंग AI डायग्नोस्टिक्स एंड इन हेल्थ टेक रोल, जैसे डायग्नोस्टिक एक पर्टिकुलर डिजीज का डायग्नोसिस अच्छे से कर सकते हैं, या फिर आजकल आपको डिजिटली सारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे जो आपको बता देंगे कि आपका ये डायग्नोसिस के सिम्टम्स क्या लीड कर रहे हैं यूजिंग AI ML एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लॉजिस्टिक्स में ये यूज हो रहा है रूटिंग एंड ट्रैकिंग के लिए, बिकॉज ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, दैट वे इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड फ्यूल। ये कॉस्ट काफी ज्यादा सेव हो जाता है। ट्रैकिंग एल्गोरिथम जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन जो है वो ट्रैक कर लेता है इजीली, सो दैट्स हाउ इट बिकम्स मोर एंड मोर स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ सर्विंग टू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर्पस। रिटेल में इट इज यूजिंग हाइपर पर्सनलाइजेशन, यूजिंग मतलब मार्केटिंग कैसे किया जा रहा है, एक पर्सन को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है एंड अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। सो रिटेल में ये पर्सनलाइजेशन हो गया है। या ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी, यानी बहुत सारे चैनल्स पे अपने प्रोडक्ट को लेकर आने के लिए कौन सा चैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंसेस एंड हिस्टोरिक डेटा, ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा चैनल वुड परफॉर्म बेटर। सो नाउ द बिग क्वेश्चन के What should MBA graduate do? एक MBA ग्रेजुएट को स्टार्ट करना चाहिए लर्निंग बेसिक्स ऑफ AI, ML एंड ब्लॉकचेन, ये क्या है, गेट सर्टिफाइड थ्रू कोर्सेज लाइक Coursera, Udemy, edX, etc. Then learn tools like Tableau and Python, which are basically visualization tools and are used in data analysis. क्योंकि आजकल हमारे पास में बाकी के जॉब्स को तो इजीली, मंडेन जॉब्स को इजीली ऑटोमेट कर दिया गया है, बट डिसीजन मेकिंग जो टास्क है वो मेजरली ह्यूमन के पास में है। सो ये डिसीजन मेकिंग हम कैसे इफेक्टिवली कर पाएंगे यूजिंग डिफरेंट विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक Tableau, Python, एक्सेट्रा। देन कोलैबोरेट विद द टेक टीम्स। सो हमारे बिजनेस में कोई भी टेक्नोलॉजी टीम्स हैं उनसे कोलैबोरेट करके हम उसको एम्बेड करें अपने पर्टिकुलर बिजनेस के आइडियाज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सो इट विल बी मच मोर बेटर। You can become a consultant which has a knowledge of all these technologies, uses the data visualization tools and collaborates with the tech team to derive meaningful business insights. So to conclude with, I would like to say that technology won't replace MBAs, but MBAs who embrace technology will outplace the person who don't. And the future belongs to those who combine business acumen with tech fluency. So thank you so much everyone for watching, and do let me know in the comment section कि आप लोग ने किस तरीके से इस पर्टिकुलर डिसरप्शन को कम्बैट करने का स्ट्रैटेजी बनाया है, एंड आप कैसे रेडी है विद ऑल योर इक्विपमेंट टू एम्ब्रेस द फ्यूचर एंड टू आउट परफॉर्म द क्राउड। थैंक्स एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस टू कम।